Hello students, welcome back to another lecture of history, class 8 social science, and this is the concluding lecture of chapter colonialism and the city, the story of imperial cities. So in the last class we have studied that how Shahjahanabad has been established and how its glory reduced after the Battle of Plassey, how it was neglected by the Britishers, how its importance was neglected for a quite long time, and after the revolt of 1857 Britishers got to understand the importance of Delhi and they shifted their capital to Delhi in the year 1911 after a grand procession of George V, King George V. This we have already studied. Okay, we will move forward. Next slide. So after declaring Delhi as the capital, the construction of new cities started, and there were two architects who are considered the main planners of this whole city, Edward Lutyens and Herbert Breker. They were called to design New Delhi and its buildings. Okay, now Britishers wanted to maintain a severe contrast between the old Delhi and the new Delhi. So New Delhi was planned accordingly so that they can see a major change in the new city. The government complex in New Delhi consisted of a 2-mile avenue. In the Shahjahanabad, roads were quite narrow, congested and busy. On the other hand, in New Delhi, the roads were kept quite wide so that it looked very spacious. Okay, so 2-mile avenue, 2-mile broad road was constructed, which was named as Kingsway. Now it is called Rajpath. That led to the Viceroy's Palace. जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक राजपथ के थ्रू जाया जा सकता था, विद द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑन द आइदर साइड्स. राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ पे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स थी. जो एवेन्यू था राजपथ का, उसके दोनों तरफ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग थी और राजपथ जो है वो राष्ट्रपति भवन तक जाता था. New Delhi took nearly 20 years to build, and the idea was to build a city that was in stark contrast to the Mughal capital of Shahjahanabad. As I've told you कि जब ब्रिटिशर्स नई दिल्ली बना रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ अपने दिमाग में रखा हुआ था कि शाहजहानाबाद से हमें जो नई दिल्ली बनानी है वो बिल्कुल अलग बनानी है, बिल्कुल डिफरेंट बनानी है. There were to be no crowded मोहल्लाज and no mazes of narrow by lanes. जो छोटी छोटी गलियां हैं, उनके जो बहुत ही गुम करने वाली गलियां हुआ करती थी शाहजहानाबाद में, बहुत नैरो रोड्स होते थे जो बिल्कुल मेज की तरह, रिडल की तरह लगते थे, वैसी गलियां इनको नहीं बनानी थी नई दिल्ली में. इन न्यू दिल्ली there were instead to be broad straight streets lined with sprawling mansions set in the middle of large compounds. बहुत ही बड़े एरियाज में बिल्कुल मिडिल में एक बिल्डिंग बनाई जाती थी. ऐसा ही इन्होंने सोचा था कि जितने भी घर होंगे वो प्राइवेट घर होंगे और दैट हाउसेज विल हैव ब्रॉड स्पेस. ओके, The new city was also designed to be a clean and healthy space. It had to have better water supply, sewage disposal and drainage facilities that was not there in old city. Old city के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था वाटर सप्लाई या सीवेज पे. दो शाहजहाँ ने जब शाहजहानाबाद बनाया था तब वहाँ पे एक कैनाल था, वहाँ पे ओपन सीवेज सिस्टम था, बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा दैट दे विल कीप इट कवर्ड. वो जितने भी सीवेज सिस्टम हैं वो सारे कवर्ड होंगे और वाटर सप्लाई जो है उसका एक बेटर वाटर सप्लाई यहाँ पर मुहैया कराई जा रही थी न्यू दिल्ली के अंदर. नेक्स्ट, ये राष्ट्रपति भवन है जो पहले वाले स्लाइड में हमने देखा, जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ये वही उसकी एक फोटोग्राफ है. You can see that this is a 2-mile broad avenue. एक रोड है, दोनों तरफ पे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है. ये जो रोड है इसे किंग्सवे या राजपथ कहा जाता था, एंड इट लेड टू द राष्ट्रपति भवन जो उस टाइम पे वायसराय पैलेस के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट, नाउ बहुत बड़ा चेंज आता है दिल्ली के अंदर जब हमारे देश का विभाजन होता है, जब हमारा देश जो है उसका पार्टीशन होता है 1947 में.
So now in this slide we will study what was the impact of partition on Delhi. 1947 में जब दिल्ली का पार्टीशन होता है तो बेसिकली दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत मेजर चेंज आता है. कई सारे जो मुस्लिम लोग थे जो दिल्ली में रहते थे, दे हैव टू मूव टू द पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान से कई सारे हिंदू सिख ओरिजिन के जो लोग थे वो दिल्ली मूव करके आते हैं. The partition of India in 1947 led to a massive transfer of population on both sides of new border. As a result, the population of Delhi swelled. Obviously, अगर पाकिस्तान से इतने लार्ज वॉल्यूम में सिख और हिंदू इंडिया आएंगे तो दिल्ली का पॉपुलेशन या ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन है उस पर फ़र्क तो पड़ेगा. तो दिल्ली का पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख हो जाता है from 3 lakh. Okay, so 5 lakh new population have been added to the current 3 lakh population. जो अब देख सकते हो 3 lakh से 8 lakh, that means multiple times population जो है वो बढ़ जाती है. Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned. So this whole partition was not free of blood. हर जगह पे bloodshed था. बहुत सारे लोग पाकिस्तान से travel करके दिल्ली आए थे. They wanted accommodation. उनको घर चाहिए था. So बहुत सारे जो घर थे मुस्लिमों के वो लूटे गए, and at the same time कुछ घरों को खरीदा भी हिंदुओं ने. और अगर मुस्लिम फैमिलीज हाउसेस छोड़ करके चली गई थी तो पीपल ने वो घर ऑक्यूपाई किया. As streams of Muslims left Delhi for Pakistan, their place was taken by equally large number of Sikh and Hindi refugees from Pakistan. Refugee जो term है उनके लिए use किया जाता है जो दूसरे देश से किसी और देश में जाकर के बस जाते हैं. Over 2/3 of Delhi Muslims migrated. Almost 44,000 homes were abandoned. दिल्ली से 2/3 जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो अबैंडन कर जाती है. जो घर हैं वो बिल्कुल अपने घरों को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 44,000 होम्स जो हैं वो मुस्लिम लोग ऐसे ही छोड़ करके और पाकिस्तान चले गए. सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड. Delhi became a city of refugees. Nearly 5 lakh people were added to Delhi's population. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5 लाख नए जो पॉपुलेशन जो है वो ऐड हो जाती है दिल्ली में. अब ये जो 5 लाख पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही थी? तो ऑब्वियसली सभी लोगों को बहुत अच्छी रहने की फैसिलिटी तो नहीं मिल रही थी. काफ़ी लोग जो हैं वो कैंप्स में, स्कूल में, मिलिट्री बैरिक्स में, गार्डन्स में, हर जगह पे कैंप लगा करके लोग रह रहे थे और इस होप में रह रहे थे कि हम नए घर बनाएंगे. Some got the opportunity to occupy residences that had been vacated. जो 44,000 homes vacate किए गए थे, abandon किए गए थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाकर के रहने लग गए. 44,000 homes में 5 लाख people cannot accommodate, right? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन जगहों पर ही रह रहे थे, कैंप्स में, स्कूल्स में. New colonies such as लाजपत नगर एंड तिलक नगर came up at this time. रिफ्यूजीज को अकोमोडेट करने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए नई कॉलोनीज जो हैं दिल्ली के अंदर उभरती हैं. लाजपत नगर, तिलक नगर जो कि बहुत रिनाउंड और काफ़ी नोन जगह हैं, ये सब 1951 के दौरान बनी है. 1947 में जब विभाजन हुआ लोगों को सेटल करने के लिए ये जगहें बनाई गई. Shops and stalls were set up to cater the demands of migrants. Schools and colleges were also opened. Next slide. In this picture you can see that what was the impact of partition. People are coming on train, they are flogged on the train. वो बिल्कुल crowded है ट्रेन. यहाँ पे कई सारे कैंप्स हैं वो दिल्ली में लगाए गए रिफ्यूजीज़ को शेल्टर करने के लिए. ट्रेन्स में इतनी भारी नंबर में लोग जो हैं वो आ रहे थे. 5 लाख पीपल आए थे. ट्रेन के ऊपर भी आपको दिख रहे हैं लोग. एंड द ट्रेन इज़ कम्प्लीटली क्राउडेड, राइट. तो ये पार्टीशन का आपको एक पिक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है. नेक्स्ट. अब एट दिस टाइम ओल्ड दिल्ली में क्या माहौल था, या ओल्ड दिल्ली जो शाहजहां ने शाहजहानाबाद जो बनाया था उसकी क्या स्थिति थी. Mughal Delhi's famed canal had brought not only fresh drinking water to homes but also water for other domestic uses. जो पहले कनाल शाहजहां ने बनाया था उससे फ्रेश वाटर जो है वो लोगों के घर तक पहुंचता था. This excellent system of water supply and drainage was neglected in the new development. जब नई डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की
वो उनका सिर्फ एक ही गोल था कि उनको न्यू दिल्ली बनानी है, न्यू दिल्ली को संवारना है और वहाँ पे ब्रॉड एवेन्यूज़ होने चाहिए, अच्छी वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अच्छा सीवेज सिस्टम होना चाहिए। बट समवेयर जो बसा बसाया शहर था ओल्ड दिल्ली, उसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने नेग्लेक्ट किया। जो शाहजहां ने इतने अच्छे एक्सीलेंट कैनाल सिस्टम बनाए थे वो सारे के सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गए। The system of wells also broke down and channels to remove household waste were damaged. जो भी ओल्ड सिटी के अंदर एफ्यूलेंस को डिस्पोज करने का जो सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन क्लेanलीनेस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा, दैट देयर विल बी लॉट ऑफ एपिडेमिक, लॉट ऑफ डिजीज। Next slide. New system of open surface drains was introduced. This system too was soon overburdened and many of the wealthier inhabitants complain about the stench from the roadside privies. जो भी रोड साइड में बाथरूम्स होती थी, टॉयलेट्स होती थी, वहाँ से काफ़ी स्मेल आती थी, तो लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गई थी ओल्ड दिल्ली में। न्यू दिल्ली में तो कवर्ड सीवेज सिस्टम था, बट ओल्ड दिल्ली में एक अलग ही सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाज अनविलिंग टू स्पेंड मनी बिकॉज दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाज नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन ओल्ड दिल्ली, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ न्यू दिल्ली को ही सजाने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ पे बहुत ग्रैंड हवेलीज हुआ करती थी, क्योंकि मुगल्स के हाथ से पावर जा चुका था। जो भी टैक्स कलेक्शन का काम होता था सब कुछ ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो मुगल्स जो है वो इतनी ग्रैंड हवेलीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ दोज हवेलीज एंड दोज हवेलीज हैड गॉट डिफरेंट यूसेजेस। नेक्स्ट। ओके, तो हवेली जो है उनकी यूसेज जो है वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि महाराजाओं ने यूज़ करना कम कर दिया था, बट एट द सेम टाइम उसके दूसरे यूसेजेस शुरू हो गए थे। जैसे हवेली के जो सामने वाले एरियाज़ थे, सामने वाले जो कोर्ट रूम्स हुआ करते थे, उनको साल में 2 या 3 बार फेयर लगाने के लिए या शॉप्स लगाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था ट्रेडर्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड जो राजा महाराजाओं कि रहने की जो जगह होती थी वो इंटीरियर ऑफ हवेली में आकर के श्रिंक हो चुकी थी, सिर्फ वो वहीं तक रह रहे होते थे, बाकी का एरिया उन्होंने रेंट आउट कर दिया था। ओके, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ओल्ड दिल्ली में देखने को मिल रहा था। अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की, जैसे इन्होंने सेंसस करना शुरू किया। सेंसस एक तरीके का एनालिसिस होता है जिसमें पॉपुलेशन और कितने तरह के लोग रह रहे हैं, कौन से कास्ट के लोग रह रहे हैं, इन सब के बारे में एनालिसिस की जाती है। ये हर 10 साल पर सेंसस किया जाता है, अभी भी सेंसस होता है हमारे देश में। तो जो सेंसस किया गया था 1931 में, उसमें काफ़ी सारे स्टार्कलिंग डेटा हमारे पास आते हैं। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वॉल सिटी एरिया वॉज हॉरिबली क्राउडेड विद एज मेनी एज 90 पर्सन्स पर एकड़। एक एकड़ में 90 लोग जो हैं वो रह रहे थे ओल्ड दिल्ली में। ऑन द अदर हैंड न्यू दिल्ली में सिर्फ 3 लोग ही रह रहे थे 1 एकड़ वाली एरिया में। तो आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में लोग जो हैं वो कितने लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड ओल्ड दिल्ली वॉज वेरी क्राउडेड, वेरी फिल्दी। वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ फैसिलिटी वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना चाह रही थी, या वहाँ पे सीवेज सिस्टम को सुधारने का, बेटर वाटर सप्लाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना चाह रही थी। 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark in the Wall City residence, but 1888 की स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं थी। तभी हमें 1931 का ये डेटा सामने आया है जिसमें हॉरिबल कंडीशन दिखती है शाहजहानाबाद की। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फिर सेटअप किया गया 1936 में दरियागंज साउथ के एरिया को डेवलप करने के लिए वेल्दी इंडियंस के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि ओल्ड दिल्ली में ऑब्वियसली अब वेल्दी इंडियंस नहीं रह सकते थे, इट वाज नॉट अकोमोडेबल। वो जगह ही ऐसी हो गई थी, बहुत फिल्दी हो गई थी, तो वहाँ से रिच लोगों को कहीं और बसाने के लिए दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो बनाया गया 1936 में। ओके, थैंक यू।